Screen is shared with all. Yes, sir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today class we will discuss a very important topic, that is the environmental analysis. In this course, we are going to discuss in detail about the human resource environment, but directly coming to the human resource environment, before discussing the human resource environment, we will have to discuss what is the environmental analysis first. So this is a very important topic because as far as the strategic management is concerned, whenever we want to have a strategy, it is very important to study the environment of the organization. Now, what is the environment of the organization? That is very important to understand. Now, environment, every organizations operate in the certain societies and environments. They affect the organizations, and organizations also affect these environments. Basically, organizations operate in three sets of environments. Now, environment includes all those forces which can affect the organizations indirectly or indirectly. Okay, we will have to discuss, or we will have to analyze all those forces which can affect the organization directly or indirectly. So, what are these sort of forces? We will just discuss. Basically, there are three types of environments in which the different organizations operate. You may have already learned about these sort of environments. The first is the external environment. Now, what is the external environment? External environment. Okay, is there any question? No, sir. Okay, HPID किसका है? Okay, let me continue from here about the external environment. External environment includes all those forces which exist outside the organizations. And these are the forces which are not controllable by the organizations. External environment में वो सारी forces include होती हैं, जिसमें इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. What are the different forces which can be included in the external environment? But basically, you'll have to understand that there are the different forces which actually exist outside the organization, and these forces are not controllable by the organization. They are not controllable by the managers within the organization. इसको हम discuss करेंगे. We'll discuss in detail about these forces. Then the second sort of environment is the internal environment. Internal environment includes all those forces which exist within the organization, and these are controllable by the organization. The managers and the organizations are able to control these environments. Basically, there are two types of environments which are mostly discussed in the different strategic management and human resource management books. But when I give the lecture, then I usually include task environment as the third environment. Now, what is the task environment? Task environment includes all the competitive situations in which the organizations operate. This is the competitive environment in which we study the competitors. Now, they pertain to the nature of the competition. There are two important forces which are going to be discussed in the task environment. One is the number of competitors, and the other one is the type of the competitors. Now, it is very important to, whenever we are going to analyze the environment, we'll have to keep in mind that what are the number of competitors and what are the types of the competitors, and accordingly we can define the strategy. Basically, task environment is the part of the external environment, but sometimes due to the importance of these competitive forces, we can discuss it as the separate environment. Basically, that can also be discussed as the part of the external environment. So these are the three different forces, forces which exist within the organizations and which are very important with respect to the strategic management point of view. Let's briefly discuss what are all these forces about. Now, external environment में जो forces हैं, that may include the demographic environment. Now, demographic environment is very important. It includes all the statistical population characteristics. Before defining any strategy, it is very important to have the strategic population. What are the different characteristics of the strategic population of the industry, of the overall country or the region,
whenever we are going to strategize anything. Then socio-cultural environment, it includes the society's attitude and cultural values. We will discuss all of these forces a little in detail. Then economic environment, it includes the nature and the direction of the economy in which a firm competes. Then technical environment, these include the activities involved in creating the new knowledge, products, and processes. Now, class here, I will also tell you that there are some environments which can be studied both as the part of the external environment as well as the part of the internal environment. For example, when we discuss the cultural environment, the cultural environment can be discussed as the part of the external environment as well as the part of the internal environment. When we will discuss the culture of the organization, within the organization, so it will be the part of the internal environment. But when we will discuss the culture of the overall society, of the country, of the different province or the regions, then that can be the part of the external environment. Similarly, technical environment can also be the part of the external environment and also the part of the internal environment. We will discuss in detail. Then political and legal environment, which includes rules and regulations governing organizations and interest groups competing for the attention and voice. इसको भी अभी discuss करते हैं. Global environment. So all these are the different forces which can be included as the part of the external environment. Now let's discuss these environments a little in detail. First, the socio-cultural environment. Now, social culture environment includes the lot of dimensions. It can include the lot of forces. We will discuss just a few forces. Now, culture is very important to be discussed whenever we are going to define the strategy, whether it's the human resource strategy or any other strategy. It is important to study the culture. What is this culture, by the way? How we can define the culture? Anyone? Culture is the relation of behavior of a group of people living in a certain environment and developing their culture. Okay, okay, you're right. It There are also many. include religious. It also include a lot of things. Okay, a lot of things. You are right. As far as the culture is concerned, if we study the literature, there are many, many dimensions of culture. There can be the hundreds of dimensions of culture. But two or three are very important dimensions of culture, like norms, values, behavior, and beliefs. All these are the very important dimensions of the culture. Now, norms mean what is the acceptable behavior and what is the not acceptable behavior within the organization, what is considered good and what is considered bad in the organizations. So all these are the different parts of the culture. Now, culture varies from organization to organization, but in this case, we are discussing the culture as a part of the external environment, as a part of the macro level. तो जैसे हमने देखा विद इन पाकिस्तान द कल्चर ऑफ द डिफरेंट प्रोविंसेस आर डिफरेंट. ठीक है, आपके डिफरेंट रीजन्स का कल्चर जो होता है डिफरेंट होता है. Similarly, lifestyle is also different with respect to the different regions. Changes in the lifestyle, organizations should be vigilant about the changes in the lifestyle. Now, we are why we are discussing it as a part of that environment, because it is very important for the managers to study the lifestyle, how the lifestyle is being changed, how the lifestyle of the customers or overall population is going to be changed. It is very important for the managers to study their lifestyles. Then consumerism, social phenomena, strong voice of the consumers. Now, consumerism का मतलब ये होता है the voice of the customers. आप अगर किसी आप देखें जो आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसमें आपकी जो वॉइस ऑफ द कंज्यूमर जो होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कोई एक आपका डिफेक्ट आ जाए किसी प्रोडक्ट में तो दे कैन गो टू द कोर्ट एंड वो सू कर देते हैं कंपनी को. दैट इज द कंज्यूमरिज्म के हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज द वॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स. ये आपको स्टडी करना होता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द कल्चर. देन कल्चर जैसे मैंने बताया बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम्स इफेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न आपका चेंज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ पर्टिकुलर रीजन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट. देन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो होती है कि आपका जो डिफरेंट वर्सटाइल किस्म के कंज्यूमर्स हैं या यूनिफॉर्म किस्म के कंज्यूमर्स हैं, यू हैव टू स्टडी दैट. देन व्हाट इज द
व्हाट इज द लेवल ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, कि आपकी पूरी पॉपुलेशन है उधर वुमेन की कितनी पॉपुलेशन है, मेन की कितनी पॉपुलेशन है. यूजुअली census data plays a very important role in all of these things. Then attitudes about equality, then shifts in the work and the career preferences. For example, आपके जो यूएसए के बारे में मशहूर है कि लोग दे क्विकली शिफ्ट देयर जॉब्स, वो 1-2 साल से ज़्यादा कहीं काम नहीं करते और फौरन अपनी जॉब्स शिफ्ट करते हैं. लेकिन इसके ऑपोजिट जापानीज के बारे में इट इज़ वेरी कॉमन, दे डोंट शिफ्ट देयर जॉब्स वेरी क्विकली. They are so much loyal to the organizations that they don't shift their jobs. So that is the culture, so all these sort of things are important to study as for the strategic managers or the human resource managers. They should know what are the different patterns which are going to be changed with respect to that socio-cultural environment. Jay, is it clear? If there is any question? No, sir. Okay. Then demographic environment. Demographic environment is very important. Again, it is very important for the managers to know about the what are the demographics of the different regions. इसकी just मैं आपको example देता हूँ. I give an assignment to some students. उन्होंने मुझे कुछ असाइनमेंट सबमिट करवाई. उसमें से एक बड़ी अच्छी कंक्लूजन उन्होंने निकाली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अबाउट द डेमोग्राफिक्स, कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्टडी ऑफ द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. नाउ एक बेबी लोशन एक प्रोडक्ट है, अभी भी है मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट. ये जब मार्केट में लॉन्च हुआ आज से कोई 10-15-20 साल पहले, तो जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ थी और बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था. तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको स्टडी किया कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, और इसमें क्या उन्होंने आइडिया कंसीव किया था. तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना था, इस जॉनसन जॉनसन जो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो बर्थ रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी तेजी से, मतलब बर्थ रेट हमारा बहुत ज़्यादा था. तो उनके मार्केटिंग मैनेजर और जो उनके मैनेजर्स थे, उनके माइंड में एक चीज़ आई कि हम लेट्स लॉन्च अ प्रोडक्ट फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़. उन्होंने कहा कि हम न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं. तो उन्होंने थोड़ी सी स्टडी की, उसकी रीज़न भी आई डेमोग्राफिक्स थी कि वो पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा था. तो उन्होंने वो लॉन्च किया, सारी उसमें वो रिसर्च की, और उसका नाम भी उन्होंने वही रखा, बेबी लोशन फॉर द बेबीज और द न्यू बोर्न किड्स. तो वो आपका बड़ा ग्रोथ में गया, जब तक पॉपुलेशन बढ़ती रही आपकी, वो उसकी ग्रोथ भी बढ़ती रही. कुछ अर्से के बाद फिर पॉपुलेशन कंट्रोल की कुछ कैंपेन स्टार्ट की गवर्नमेंट ने, और उसका जो है ना वो स्टेबिलिटी स्टेज आ गई और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी. तो फिर उन लोगों ने दोबारा स्टडी किया डेमोग्राफिक्स को कि अब ये बर्थ रेट नहीं हो रहा. अब उन्होंने क्या किया, पहले बच्चों को टारगेट करा था, उन्होंने लेडीज को टारगेट करना शुरू कर दिया कि लेट्स लेडीज आल्सो यूज दिस प्रोडक्ट इज नॉट ओनली फॉर द किड्स बट दिस इज आल्सो फॉर द लेडीज. और स्पेशली उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च की, मुझे अभी तक याद है उसकी वर्डिंग. वो कहते थे कि एक वो खातून होती थी, वो कहती थी मैं बच्ची तो नहीं हूँ, मैं फिर भी बेबी लोशन यूज करती हूँ. नो एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने टारगेट मार्केट अपनी चेंज कर दी. सिर्फ उन्होंने कोई चेंज नहीं आई प्रोडक्ट में, सिर्फ उन्होंने टारगेट मार्केट चेंज कर दी कि किड्स के वुमेन को टारगेट किया, और वो फिर ग्रोथ में स्टार्ट हो गया, और फिर उसकी 5-6 साल तक सक्सेसफुली उसकी ग्रोथ रही. तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने डेमोग्राफी को स्टडी किया, एक ट्रेंड को स्टडी किया पॉपुलेशन में, और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्रोथ रेट आपकी किसी के से, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं, कम एज के लोग ज़्यादा हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, बर्थ डेथ रेट क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. So all these are the different factors which are important when we are going to study the environment. So that is the importance of the demographic environment. Similarly, economic environment is again a very important force within the external environment. In this sort of environment, we study the price control mechanism, whether the prices are being controlled by the state or the government or not. किसी कैसे कंट्रोल हो रही है प्राइसेस, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स चीप लेबर. अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा होगी तो आपको लेबर चीप रेट पे मिल जाएगी. अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपको लेबर एक्सपेंसिव मिलती है. लाइक यूरोप में और अमेरिका में चले जाएं तो लेबर आपकी एक्सपेंसिव होती है. पाकिस्तान जैसी कंट्री में या चाइना की कंट्री में आपको लेबर चीप रेट में मिल जाती है बिकॉज ऑफ दैट द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में, पर्सनल सेविंग रेट क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है किसी प्रोडक्ट का, एनर्जी सप्लाई आपको वेदर दैट इज कॉस्टली और लेस कॉस्टली, taxation systems, fiscal policy, government spending, government budget. So all these are the different components of the economic environment which are to be studied in detail. Then technical environment. टेक्निकल इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कुछ इन्वायरमेंट्स होती हैं जो पार्ट होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी और इंटरनल इन्वायरमेंट का भी. तो सिमिलरली टेक्निकल इन्वायरमेंट कैन बी द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज वेल एज द इंटरनल इन्वायरमेंट. When we discuss it as a part of the external environment, so it means that we will study the overall technical environment of the overall society. जैसा पाकिस्तान is an underdeveloped countries or the developing country, so इसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है ज़्यादा थोड़ी सी लेट आती है, पहले एडवांस कंट्री के बाद आती है, उसके बाद हमारे आती है. देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी क्या व्हाट इज योर स्पेंडिंग इन दी R&D में आप लोग कितनी कंट्री एज अ कंट्री कितना स्पेंड कर रहे हैं, पेटेंट लॉज क्या हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एम्प्लॉय स्किल लेवल क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन कितनी हो रही है. तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनवायरनमेंट. बट अगेन आई एम टेलिंग व्हेन वी डिस्कस इट as the part of the external environment, it means we are generally discussing it at the macro level. But हम इसको इसी से भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कितनी तेजी से हो रही है. तो इन दैट sense that will be the part of the internal environment. So these are the different forces which are important as far as the technical environment is concerned. Then legal and political environment, again a very important environment. Political environment जो होती है that is again very important force within the external environment. इसमें there are the two important things as far as the political environment is concerned. सबसे पहले इसमें हमने देखना होता है कि what is the ruling party agenda within the country. Now again we are discussing it as the macro level कि जो रूलिंग पार्टी है उसका एजेंडा क्या है, उसके मुताबिक फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और अपने रूल्स और बाकी सारी चीजें बनाती हैं. नाउ इसमें फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक गवर्नमेंट अगर आती है पाकिस्तान में तो कहती है कि हमने ग्वादर और इस चीज को प्रमोट करना है. दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि हमारी मोटरवेज अच्छी होनी चाहिए और हम उसको प्रमोट करेंगे. तीसरी गवर्नमेंट आती है तो उसका कोई और एजेंडा होता है. तो यू हैव टू सी कि वो जो एजेंडा क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका एजेंडा क्या है, एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी define their strategies in line with that political agenda. Now, another important thing as far as the political environment is concerned, that you will have to study whether the political stability hai ke nahi hai within the country. That is very important. Whenever there is a political stability, there will be the certainty and the organizations can make the long-term policies. Unfortunately, जैसा पाकिस्तान जैसी कंट्री में कभी भी हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, तो उसका क्या होता है कि whenever there is instability in the political environment, so you cannot make the long term decisions. जो आपकी organizations हैं जो multinational companies हैं, it is very difficult for them to make the long term decisions, to make the long term strategies because of that uncertainty in the political environment. क्योंकि नई गवर्नमेंट जैसे ही उसको पता चलता है कि कुछ अर्से बाद नई गवर्नमेंट आएगी तो सारे पॉलिसीज वो चेंज कर देती है. So in that sense, these forces are important as far as the political environment is concerned. Then legal environment again important. Legal environment में हम देखते हैं कि what are the rules and policies जो आपकी organizations हैं like telecom की या PTA telecom authority, तो क्या उनके rules हैं, उनकी regulations क्या है in order to control the telecommunication companies. So that is again legal environment is again very important. इसमें मॉनिटरी मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटीज होती हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज कितनी इफेक्टिव हैं, यू हैव टू स्टडी इट. टैक्सेशन लॉज क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्या हैं, लेबर लॉज क्या हैं विद इन द कंट्री, स्पेशल इंसेंटिव्स क्या दे रही है गवर्नमेंट, किन सेक्टर्स को दे रही है, जैसे आजकल वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्पेशल इंसेंटिव दे रही है. तो दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमने डिस्कस किया, दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी स्टडीड. नाउ ये सारी चीजें इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजर्स जिन्होंने भी स्ट्रेटजीज बनानी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनानी है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पूरी इन्वायरमेंट को एनालाइज करें, इनकी फोर्सेस को एनालाइज करें और देखें कि हाउ दिस फोर्सेस कैन इफेक्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस. देन ग्लोबल इन्वायरमेंट कि व्हाट आर द क्रिटिकल ग्लोबल मार्केट्स कौन सी हैं, इमर्जिंग मार्केट्स क्या हैं,
इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स कौन से हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशंस क्या हैं, लाइक देयर आर द डिफरेंट ट्रेड रेगुलेशंस होती हैं, लाइक WTO है, व्हाट इज WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपकी जो है मोर देन 200 कंट्रीज जो हैं उसको रेगुलेट करती है ट्रेड को, इसको जो है ना बॉर्डरलेस जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। तो उसके क्या रूल्स हैं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स क्या हैं, आपकी अपनी कंट्री ने किस किस कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो दैट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हमने कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फोर्सेस को डिस्कस किया है कि how these can affect the organization, how why it is important to for the managers जो है to study these forces. Similarly environment, जो internal environment है उसमें बहुत सी forces होती हैं, like इसमें organizational structure आता है, organizational structure में फिर formalization, complexity क्या है, centralization का concept आ जाता है, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स और उसकी क्वालिटी क्या होगी ह्यूमन रिसोर्सेज की। देन टॉप मैनेजमेंट, वेदर वो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, उनका एजेंडा क्या है, ठीक है, वेदर वो ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट है या वो जो है एक डायनामिक सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट है। रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, वेदर ब्यूरोक्रेटिक किस्म के रूल्स अप्लाई किए हुए हैं, फ्लेक्सिबल किस्म के रूल्स हैं। R&D स्पेंडिंग क्या है, नो R&D स्पेंडिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना स्पेंड कर रही है R&D पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनानी है तो यू हैव टू स्टडी के व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑन द R&D, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके कितने हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अगेन व्हेन वी स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज ए पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, इट मींस द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं एंड नॉर्म्स हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके वैल्यूज होती हैं और बिलीव्स होती हैं और जो नॉर्म्स होती हैं या जो कल्चर होता है ओवरऑल, दैट इज डिफरेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से डिफरेंट होता है। लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल में चले जाएं तो उसका एक अलग कल्चर है। इवन कि आप ड्रेसेस को देख लें कि उधर कंपल्सरी होता है, यूजुअली आप टाई लगा कर जाएं, और वो टाई अगर नहीं लगा के रहेंगे ओके यू आर डूइंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन। लेकिन अगर किसी पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो उधर इतना कंपल्सरी नहीं होता, उनका अपना कल्चर है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स कि वो जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है उसको वो दे शुड ऑलवेज कीप दैट कल्चर इन माइंड व्हाइल मेकिंग देयर पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स। ओके, इसको इंटरनल एनवायरनमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया कि फॉर्मुलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कितने फॉर्मुलाइज्ड रूल्स एप्लीकेबल हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आपने देखा होगा अगर गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें आपके बहुत ही फॉर्मल रूल्स होते हैं, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। और इसके ऑपोजिट आप किसी मल्टीनेशनल में चले जाएं तो उधर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उधर उतने ज़्यादा रिजिड रूल्स नहीं होते, फॉर्मुलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। Similarly, you will have to see the complexity. Like public sector organization जो होती हैं उनका कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर्स होता है, उनकी हायरार्कीज होती हैं, ठीक है, आपके जिस तरह डिफरेंट पे स्केल्स होते हैं ना, ये BPSP, वो भी आपके डिफरेंट हायरार्कीज हैं। उसको आप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टली भी देखते हैं, वर्टिकली भी देखते हैं कि वर्टिकली आपके जो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, हॉरिजॉन्टली एट द सेम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कितनी हैं, डिपार्टमेंट भी कितने हैं। तो जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होंगे, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फॉर्मुलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, कोई हेडक्वार्टर में डिसीजन मेकिंग हो रही है या उन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर्स दी हुई है टू द डिफरेंट डिविजन्स और द डिफरेंट यूनिट्स। देन टॉप मैनेजमेंट का, जैसे आपने मैंने आपको बताया कि यू हैव टू सी कि वेदर टॉप मैनेजमेंट का एजेंडा क्या है, उनकी वेदर दे आर ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में बिलीव करते हैं या वो डायनामिक डिसीजन मेकिंग में बिलीव करते हैं। रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, अगेन अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उधर बड़े रिजिड किस्म के रूल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है। इसके अपोजिट मल्टीनेशनल में उतने रिजिड रूल्स नहीं होते और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो ऑल दीज थिंग्स जो होती है दीज आर टू बी स्टडीड बाय द मैनेजर्स। जी, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन अभी तक? No, sir. No, no, sir. ये थोड़ा सा हमने एक्चुअली आना है अल्टीमेटली टुवर्ड्स द ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको जनरली एनवायरनमेंट का बताना था ताकि आपको एनवायरनमेंट का पता चले कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं डिटेल में पहले उसको बता रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो देन वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट। दैट्स वाई थोड़ा सा मैं आपको ये पहले एक वो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। Right, sir. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक दो और चीज़ें, जैसा इंडस्ट्री एंड मार्केट जो एनालिसिस होता है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कि इंडस्ट्री का प्रोफाइल कितना है, एक इंडस्ट्री में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, यू हैव टू स्टडी दैट। मेजर प्रोडक्ट लाइंस क्या हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट लाइंस क्या हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट लाइंस क्या हैं, मार्केट सेगमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वेदर आपने यंगस्टर्स को टारगेट किया हुआ है या आपने कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया हुआ है, कौन सी आपके टारगेट मार्केट है, इस तरीके से आपने सेगमेंटेशन की हुई। इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस शायद आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी स्टडी द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज विद द इंडस्ट्री। देन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल आप स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, आपका अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, you have to study in detail. Then competitive analysis again, competition को जिस मैंने बताया, you have to analyze के what is the strength of the competition within the organization, उसका लेवल क्या है कंपटीशन का, विद नंबर ऑफ competitors कितने हैं, उसको आपने स्टडी करना होता है as far as the this external environment is concerned. इसमें पॉलिटिकली एंड रेगुलेटरी एनालिसिस ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सोशल एनालिसिस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज सरप्लस एंड शॉर्टेज, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड जो है देयर विल बी अ सेपरेट वन और टू लेक्चर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन विच वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस, और इसमें प्लानिंग के अंडर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें सरप्लसेस, शॉर्टेजेस, ये सारा हमने एक या दो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना है। देन स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं आपके पास, उनकी रेशो क्या है, यू हैव टू स्टडी दैट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में सप्लाई डिमांड क्या है, और अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिमांड क्या है, उनका गैप कितना है, R&D इनोवेशन का रेट क्या है, ठीक है, ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में फाइनेंशियल एनालिसिस आप देखते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, फंड्स का यूसेज किस तरीके से हो रहा है, और आपकी व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंटरनल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं, इसको भी हम थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। वी विल डिस्कस द बेसिक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट को हम डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन की क्या है, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, देयर आर मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So these again are the important components of the internal environment analysis, market audit, market segments, market share क्या है, ये सारी चीज़ें। परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी एक सेपरेट लेक्चर होगा आपका, उसमें हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को। लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, एनी आइडिया, जो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक तो होता है ना कि जो प्रोडक्ट है उसका मतलब एयर कंडीशन है, उसकी जो लाइफ टाइम जो किया जाता है वो 5 साल होता है। नहीं, तो सॉरी अख्तर, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपका जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो उसकी पहले हम लॉन्च होता है जी। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले उसकी होती है सर इंट्रोडक्शन इसकी स्टेज। जी सर ये जो है मतलब कि हम मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल हमने लेना होता है, तो मतलब कि और फिर उसके बाद जो है हमारी लेबर आ जाती है, अच्छा, ये और आप लोग थोड़ा सा फिर डिफरेंट मतलब प्रोडक्शन लेवल। डिफरेंट बता रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, एक चीज़ हमेशा याद रखें, एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ सर्टेन लाइफ साइकिल। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी एक लाइफ साइकिल होता है ना। लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है
कि जिस तरह एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो उसकी इंट्रोडक्शन होती है, सेल शुरू में कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल बढ़नी शुरू होती है, तो वो एक ग्रोथ की स्टेज आ जाती है। ये सेकंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्रोथ की स्टेज आती है। ग्रोथ में वो सेल आपकी ज्यादा हो रही होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लोग थोड़े से सैचुरेट हो जाते हैं, फिर उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, उसकी सेल जो है कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ये एक जनरल लाइफ साइकिल होता है एवरी प्रोडक्ट का। जब मेच्योरिटी की स्टेज आती है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन लेके आती है, कोई प्रोडक्ट में चेंज लेकर आती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड देन डिक्लाइन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी यही लाइफ साइकिल होता है कि वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज आती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर स्टेबिलिटी और फिर डिक्लाइन। अगर वो चेंज नहीं करती तो वो डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। और इसको यूजुअली जो मैं बता रहा होता हूँ, तो ये दैट इज द नेचुरल थिंग। आप एक इंसान का लाइफ साइकिल भी देखें तो यही लाइफ साइकिल अल्लाह ताला ने भी बनाया, इंसानों का लाइफ साइकिल दैट इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। कि इंसान पैदा होता है तो ज़ाहिर एक इंट्रोडक्शन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है, उसकी यंग होता है, उसकी जवानी आती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़नी है, चलो शुरू होती है, मेच्योरिटी की स्टेज आती है, उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और दैट इज दी, और एक एंड फिर हो जाता है। तो that is the case similar to that life cycle of the product or life cycle of the organization। तो ये होता है लाइफ साइकिल, जो हम इसको आगे कभी लेकिन हम सर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी कि सर इसमें एक चीज मैंने नोट की है, जी जी जैसे लक्स तो साबन है, लक्स सोप है, जी जी अच्छा शुरू में इसकी और एडवर्टीजमेंट आती थी, उसके बाद इन्होंने बीच में परफ्यूम जो है वो जो फ्रेग्रेंस वो चेंज कर दी, कई तरीके से उसकी जो है ना एडवर्टीजमेंट करके अभी तक लक्स जो है ना वो हमारे बचपन से लेके अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि ओके, यू आर वेरी राइट। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें होता ये है कि जब इंट्रोडक्शन आती है ना, किसी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए ज़्यादा इंट्रोडक्शन, कुछ लोग तो कुछ, अब ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज तक जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन करते ही वो फेल हो जाते हैं, तो उसका लाइफ साइकिल एंड हो जाता है। कुछ लोग कुछ अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक प्रोडक्ट जो है 10 साल हमेशा ग्रोथ की तरफ जाता रहे। वो क्या होती है, कभी ना कभी उसकी सैचुरेशन की स्टेज आ जाती है, जिसमें कस्टमर सैचुरेट हो जाते हैं। वो स्टेज वो होती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर देखते हैं उसमें कोई ना कोई चेंज, जो आप बता रहे हैं ना, उसका फ्रेग्रेंस चेंज कर दिया, उसकी पैकिंग चेंज कर दी, उसमें कोई और चेंज लेकर आए, कोई फीचर उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो इस तरह से करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ ना जाए और दोबारा उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए स्टेबिलिटी के बाद। तो दैट हर ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि जब भी स्टेबिलिटी की चेंज आती है, जैसे मैंने आपको उसकी बेबी लोशन की भी एग्जांपल दी, कि वो कुछ ना कुछ चेंज लेकर आते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट में चेंज लेकर आते हैं, मार्केटिंग कैंपेन चेंज करते हैं, टारगेट मार्केट बाद वो चेंज सर करते हैं, ताकि उसकी वो सर, तरफ ना जाए और वो दोबारा उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। जी सर फॉर एग्जांपल आईफोन को ले ले, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। तो मतलब कि उनकी कोई नई चीज नहीं आती है, मतलब उसमें कुछ चीजें ऐड करके और वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे उनकी ही होता है, प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। सक्सेसफुल हो जाती है, उसमें कोई ना कोई फीचर ऐड कर देंगे, नया वर्जन आ जाएगा, ठीक है। वो इसी वजह से जी होता है जी। ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डिक्लाइन की तरफ ना जाए, क्योंकि दिस इज द नेचर ह्यूमन बीइंग कस्टमर। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक मोबाइल खरीद लें तो आप हमेशा इसी से सेटिस्फाई हो जाएगी पूरी दुनिया, वो नहीं होता। हर जो कस्टमर होता है ना, उसकी तो डिमांड चेंज होती रहती है, उसका स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। फिर टेक्नोलॉजी चेंज, एग्जैक्टली। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो नए फीचर उसमें ऐड करते रहते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वो अपनी लाइफ साइकिल को अपना प्रोलॉन्ग करें और जितना मैक्सिमम वो ग्रोथ करे, ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे। और स्टेबिलिटी जब भी आती है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कुछ ना कुछ चेंज लेकर आती हैं अपने प्रोडक्ट में। और यू आर वेरी राइट, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। अच्छा, इसमें आगे जाके एक और भी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसको मैं एक दो स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। एनवायरमेंट को स्टडी करना मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी होता है ना। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ एनवायरमेंट्स बड़ी तेजी से चेंज होती हैं, कुछ एनवायरमेंट्स बहुत स्लोली चेंज होती हैं। अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। लाइक अभी टेलीकम्युनिकेशन की आपने बात बताई, तो कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ठीक है। कंप्यूटर को देख लें या आप टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल्स वगैरह को देख लें, हर दूसरे हफ्ते, हर महीने के बाद नए नए वर्जन आ जाते हैं और वो चलते हैं। तो ये टेक्निकल इन्वायरमेंट ऐसी इन्वायरमेंट है विच क्विकली चेंजेस। इसके ऑपोजिट अगर कल्चर को देखें या सोसाइटी को देखें, तो कल्चर जो होता है बहुत आहिस्ता से चेंज होता है। यूजुअली हम कल्चर के बारे में कहते हैं इट रिक्वायर्स अ डिकेड टू चेंज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर एक साल में, 2 साल में चेंज नहीं होता, इसके लिए 10 साल चाहिए होते हैं।
चेंज करने के लिए कल्चर को, किसी कंट्री के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के इवन के कल्चर को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जितनी एनवायरनमेंट जल्दी से चेंज होती है, जितनी फोर्सेस जल्दी से चेंज, उतनी ज़्यादा मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो विजिलेंट रहे, उसको एक्टिव रहना पड़ता है। जैसी कोई चेंज आती है एनवायरनमेंट में, अकॉर्डिंगली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज लेकर आए ताकि उसके कस्टमर इंटैक्ट रहें। और ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि उनकी जो ग्रोथ होती रहे, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो और उनके प्रोडक्ट्स की जो है वो भी ग्रोथ उसकी कंटिन्यू रहे। ओके सर। ओके, इसी तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी को हमने डिस्कस किया था डिटेल में, और हमने कहा था कि हाउ वी कैन मेजर द प्रोडक्टिविटी। तो वो हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी जो लेवल है दैट में बी डिफरेंट, उसको आपने डिस्कस करना है। प्लांट्स एंड मशीनरी क्या है, सर्विस डिलीवरी किसी किसी हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर्स हैं कि नहीं हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च फंड्स कितने हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेज विच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। So that's why these are the part of the internal environment. Similarly, MIS environment जो होता है इंटरनल environment में, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि MIS डिपार्टमेंट जो होता है ना आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सारा डाटा इसमें MIS में होता है, और आपने उसको डाटा को एनालाइज करके आपकी डाटा आपके पास कम्युनिकेशन कंपनी में जाएं, उनके पास एक-एक चीज़ का डाटा होगा कि कौन से कस्टमर हैं जो सुबह मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो रात को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिज़नेसमैन कितना अरसा यूज़ करते हैं, और फिर आपने देखा होगा उसी की बेस पे उस डाटा को एनालाइज़ करके वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के पैकेजेज़ लेकर आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट पैकेज होंगे, मॉर्निंग के लिए डिफरेंट पैकेज होंगे, नाइट के लिए डिफरेंट पैकेजेज़ होंगे। तो ये किस बेस पे होता है, उसी MIS डाटा की एनालिसिस की बेस पे वो लेकर आते हैं। दैट्स व्हाई जो MIS होता है डिपार्टमेंट, that plays a very important role within the organization, and that is again the part of the internal environment. इसमें आपका एम्प्लॉय डाटा बैंक होता है, आपके अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा बैंक होता है। फॉर एग्जांपल, आप आजकल कोई भी मैनुअली काम नहीं कर रहा होता, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देख रहे होते हैं कि उनकी स्किल्स क्या हैं, कब उनकी प्रमोशन ड्यू है, और क्या और भी क्या डिफरेंट अप्रेजल आपने किसी कैसे करना है, और ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग मेंटेन्ड in the MIS department as far as the human resource data is concerned. Then communication programs and systems, these are again very important part of the internal environment. ये क्लास कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की with respect to the environment. तो इसको environment को हमने कहा कि these includes the forces which exist which can affect the organization directly or indirectly. नो, आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी होगी या तो आपको ये एनवायरनमेंट को स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, तो उसमें उसका पहला जो पार्ट होता है ना, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल या ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। तो पहला पार्ट ही आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। विदाउट स्टडिंग द एनवायरनमेंट यू कैन नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। दैट्स सो इम्पोर्टेंट दिस एनवायरनमेंट इज। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन, अभी ये हमारा सेशन इट विल बी अबाउट टू क्लोज विद इन अ मिनट। 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, और देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्वॉट एनालिसिस। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर द 5 मिनट ब्रेक वी विल अगेन स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। ओके सर। राइट।